لیکن جیسے میری سسٹر سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ بہت ابھی حالات بالکل خراب ہیں. جیسے باہر جانے بھی بہت ڈر لگتا ہے ہر کسی کو. جیسے میری نیز نیفیو ہے نا, وہ ہمیشہ اپنی مما کو بولتے ہیں کہ مما کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ بچوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ابھی افغانستان کا حالت بالکل الٹا ہوا ہے. تو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, اور جب حالات دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے کہ میں یہ ابھی سوچ رہی ہوں کہ میں کبھی بھی افغانستان واپس نہیں جاؤں گی. میں بھی, لیکن پھر بھی لڑکیوں کو بہت ڈر لگتا ہے طالبان سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ہمت کر کے اسکول جائے یا کالج جائے, کیونکہ وہ جو ڈر ہے نا بہت سالوں سے ان کے اندر ہے. وہ تو بتایا ہمیں کہ میں گھر سے باہر تو نہیں جاتی ہوں کیونکہ اس کو ڈر لگتی ہے کہ یہ بھی اسی طرح نہیں تھا نہیں. 10 سال پہلے طالبان آیا تھا تو ان ہم لوگوں کو کیا پتا کہ یہ بھی اسی طرح ہے. طالبان کا جو پہلے جو پولیٹکس تھا تقریباً 25 سال پہلے جو حکومت کیا افغانستان میں, اس وقت یہ لوگ نہیں مانتا تھا, عورت کو باہر نہیں نکلنے دیتا تھا. ابھی وہ لوگ بولتا ہے کہ ہم کو چینجز آیا ہے, ہم یہ کرتا ہے کہ مثلا عورتیں جائے بے شک. ہاں میں تو ادھر خوش ہوں, میں واپس تو نہیں جاتی افغانستان, میں تو ادھر بہت خوش ہوں. ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ. ਮੈਂ ਅਨੁਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ स्वागत आपका. تھینک یو, شکریہ. खान साहब, अगर हम बात करें जो चीज़ें हम लगातार टीवी पर देख रहे हैं, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, उन सब चीज़ों को देखकर आपके जहन में क्या चीज़ें आ रही हैं इस वक्त? وہ کیا ہے کہ ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا وطن میں اس طرح باتیں ہو رہا ہے, اور ہمارا جو ادھر ابھی رشتہ دار ہے, بچیا اور وغیرہ جو رشتہ دار ہے میرا ادھر رہتا ہے, یہ ہم کو دیکھ کر ہم یہ جو حالات ہے ابھی کابل, خاص کابل میں, پورے افغانستان میں, یہ ہم کو بہت دکھ اور بہت وہ ہوتا ہے کہ کیوں اس طرح ہوا. جو افغان لوگ کا مثلا جو فوج تھا نہیں لڑا یا دوسرے باتیں جو بات میں ہوا, یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ہم بہت افسوس بھی کرتا ہے کیونکہ ہمارا وطن کا جو صدر تھا وہ چھوڑ دیا افغانستان کو, اور افغانستان طالبان کے قبضے میں چلا گیا. ابھی پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. ہم کو بہت دکھ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو انٹرنیشنل لوگ ہیں, جو بین الاقوامی لوگ ہیں, جو اقوام متحدہ کا, جو یونائٹڈ نیشن کا, جو افغانوں کے ساتھ بخصوص عوام, خاص عوام کے لیے اگر یہ لوگ ہیلپ نہ کرے پھر بہت ایک فاجعہ ہوتا ہے افغانوں کے لیے. یہ بہت ہم وہ کیا بولے آپ کو, بہت دکھ ہے ہم کو.
खान साहब, अगर हम बात करें, आपने लगभग 30 साल अपने वहाँ की फ़ौज को दिए, फ़ौज के लिए बहुत सारी जंगें भी लड़ी ताकि वहाँ पे अमन रहे, वहाँ पे आज़ादी रहे, लोग अमन अमान से घूम सकें। लेकिन जब आप देखते हैं कि वहाँ पे इस वक्त ये माहौल हो चुका है, इस तरह का माहौल हो चुका है, तो कभी कभी लगता है कि जो इतने साल आपने उस फ़ौज में दे दिए, कहीं ना कहीं वो व्यर्थ गए। बात ये है कि देखें, जब एक निज़ाम के दरून में इख्तलाफात हो जाए, क्योंकि हमारा सदर के साथ और उसका वो जो इंतखाबात में उसका रकीब था डॉक्टर अब्दुल्ला के साथ, वो दरून में इख्तलाफात चल रहा था, इसीलिए तो फ़ौज का तो इसमें कोई वो नहीं है। फ़ौज जो है एक कंट्री का रक्षक के लिए है, और वो जो फ़ौज है वो एक बड़ा 3 लाख का लगभग फ़ौज था, सबसे बड़ा तकरीबन अफ़गानिस्तान में ये फ़ौज बिल्कुल काफ़ी था अफ़गानिस्तान की डिफेंस के लिए। लेकिन जब दरून में इख्तलाफात बन गया और इन लोग एक बोला कि मैं सदर हूँ, दूसरा बोला नहीं मैं सदर हूँ, तो अफ़गानिस्तान में इसी दरून का इख्तलाफात के वजह से तालिबान ने फ़ायदा उठाया और अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा किया। आपने बहुत सारी जंगें लड़ी, आप ज़ख्मी भी हुए उसमें। आप बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी जंग थी जिसमें आप ज़ख्मी हुए, किस हालात में आप रहे वहाँ पर? वो मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में अभी से नहीं है, तकरीबन 42 साल हुआ है जो अफ़गानिस्तान में जंग है। एक तो पहले मसलन रूशन लोग आया, उसके बाद 10 साल हो रहा, उसके बाद खाना जंगी हुआ। खाना जंगी में बहुत नुकसान हुआ अफ़गानिस्तान को, जितना नुकसान खाना जंगी में हुआ उतना नुकसान रूशन के वक्त पे नहीं हुआ। उसके बाद जो तालिबान निकला, तकरीबन 5 साल तालिबान ने हुकूमत किया अफ़गानिस्तान में। उस वक्त जो साल था 96 में, 96 to 2001 में तालिबान ने हुकूमत किया अफ़गानिस्तान में। और हम ये कहता है कि हम तो था फ़ौजी का वो डिफेंस है अपनी वतन के लिए। हमने अपनी सरहदात पे उस वक्त रक्षक किया और 2 बार घायल भी हुआ। वो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान बॉर्डर में, अफ़गानिस्तान ईरान बॉर्डर में 2 जगह में तैनात था अपनी वो बटालियन के साथ। तो हम अपना वो ड्यूटी कर रहा था। तो लड़ाई तो होता है, खामखा लड़ाई में तो लड़ जड़ कर आदमी घायल भी हो जाता है, और ये बातें तो हो सकता है। फिर भी हमको बहुत दुख है जो हम लोग अपनी वतन के रक्षक के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन इस तरह हुआ कि दरून के इख्तलाफात से। फिर आपको बता दूं कि जो हुकूमत था, ये हुकूमत दरून में इख्तलाफात था, ये इख्तलाफात के वजह से तालिबान ने फ़ायदा उठाकर अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया। और अफ़गान फ़ौज में बिल्कुल नहीं लड़ा उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों को एक अच्छा कमान होना चाहिए था। हर फ़ौज में, हर कंट्री में जो एक कमान न हो, एक फ़ौज में जब उसके बड़ा उसको न बोले कि मसलन तुम ये काम करो, ये जगह ले लो, या वो करो, या डिफेंस करो, या मसलन तकनीकी के लिहाज से वो कर ले, वो कमान होना चाहिए। वो इसीलिए कि वो कमान नहीं था, और ख़ुद अशरफ गनी वग़ैरह जो था, ये लोग फ़ौजी नहीं था, इसीलिए ये लोग शिकस्त खा लिया और अफ़गानिस्तान चला गया तालिबान के पास। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैम, कितने साल हो गए आपको भारत में आए हुए? 4 साल। क्या चीज़ थी जिसने आपको कहा कि अफ़गानिस्तान छोड़ के हम भारत की तरफ चलते हैं? उधर अमन नहीं था, इस वजह भी हम इंडिया आया। मैम, अभी भी पीछे घर पे कुछ लोग आपके परिवार के वहाँ पे होंगे, तो जब आपको पता चला, जिस दिन आपको पता चला कि ये सारे हालात हो रहे हैं, तालिबान का कब्ज़ा हो गया वहाँ पर, तो क्या चीज़ें चल रही थी दिमाग में? बातचीत हुई उनसे? क्या कह रहे हैं वहाँ के लोग? हाँ, उनके साथ बात किया था, मेरे बेटी के साथ।
वो पापा के साथ भी बात किया, उन्होंने है तो बताया कि तालिबान आया, वो तो घर से बाहर तो नहीं निकला, पता नहीं हम 10 साल पहले थी तालिबान लोग आया, किसी सब लोग डर लगती थी, किसी को बाहर नहीं, घर से बाहर नहीं जाती, स्कूल बंद थी, कॉलेज बंद थी, सब औरत बगैर हस्बैंड के साथ भी बाहर तो नहीं जाती। अभी पता नहीं क्या हुआ, हम भी परेशान हैं क्योंकि हमारा देश है, हम भी उसके साथ प्यार करती हैं। अफ़गानिस्तान हमारा देश है, हम उधर ज़्यादा हुआ था, क्या करें, हमारा पास कोई चारा नहीं है, मेरी बिटिया है उधर है। बिटिया से बातचीत हुई, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने बाहर निकल कर देखा, क्योंकि उन्होंने सबको घरों में कैद करके रखा है, घर जाने बाहर निकलने से मना किया है। बातचीत हुई, क्या कह रहे हैं वो तो बताया अम्मी कि मैं घर से बाहर तो नहीं जाती हूँ क्योंकि उसको डर लगती है कि ये भी उसी तरह नहीं था, नहीं 10 साल पहले तालिबान आया था, इन हम लोगों को क्या पता कि ये भी इसी तरह है, वो तो बाहर तो नहीं जाती, घर पर है। किसको ज़्यादा जिम्मेवार समझते हैं, पाकिस्तान को जो उनका साथ दे रहे हैं, या अमेरिका को जो बेसहारा छोड़ गए बीच में अफ़गानिस्तान को? ये तो मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने दखल अंदाजी कर दी है, उनका हाथ में। यही सवाल मैं खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? इसमें तो कसूरवार दोनों को हम समझता है, बल्कि तीनों को। एक तो पाकिस्तान तो दखलंदाजी तो करता है, दूसरा अमेरिकन को 20 साल अफ़गानिस्तान में रहा, फिर तालिबान को शिकस्त नहीं दे सका, फिर अभी भाग गया, तो ये तो भागने का बात है। वो हम एक मिसाल देता है, बगराम हमारा एक बड़ा एयरपोर्ट है जो रूशियन तकरीबन 50 साल पहले बना हुआ था। ये इसको सब जो सामान, साजो सामान जो फ़ौजी सामान था वो निकाल कर रात के वक्त पे वो ये लाइट वगैरह बंद करके भाग गया। ये बगराम अदे को ये लोगों ने इसी तरह छोड़ा। इसी तरह तीनों को तीसरा ये हुकूमत है जो अफ़गान हुकूमत अपना वो एक मज़बूत हुकूमत नहीं था, दरून के इख्तलाफात था। ये लोगों ने बोलता था कि वरना अगर वो हमारा जो फ़ौज 3 लाख से ज़्यादा फ़ौज था हमारा पास, प्लेन था, टैंक था, सब फ़ौजी साजो सामान जो अभी इसी वक्त का जो असरी और बहुत पेशरफ्ता साजो सामान उसके पास था, लेकिन ये क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि ये सब मुक़स्सर है, पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गान हुकूमत, ये तीनों मुक़स्सर है मेरे पास। सर, जिस तरीके से जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा है कि वो जो औरतें हैं उनको पूरा राइट देंगे कि वो बाहर भी निकल सकेंगी, पढ़ भी सकेंगी और काम भी कर सकेंगी, क्या आप उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि जो बातें कही गई हैं वो पूरी भी की जाएंगी उनकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखते हैं हम कि अगर वो लोगों ने जो उसका वो जो कॉन्फ्रेंस वगैरह में देख लिया, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उसका वो सुखनगोई या वो तालिबान तहरीक का जो बातें जब मीडिया में बताता है, वो बोला कि हम अफ़गान औरतों को ये चाहता है कि वो इस्लामी हिजाब पहन कर अपनी कामों पे जाए, और स्कूल वगैरह जो लड़कियाँ जाता है वो पूरे इस्लामी हिजाब के साथ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बातें करना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरा बात है। अभी ये 3 दिन हुआ जो ये लोगों ने अफ़गानिस्तान पे, काबुल पे कब्ज़ा किया, ये बाद में देखा जाएगा कि ये लोग अपनी बातों पर अमल करता है या नहीं करता है। इसीलिए ये क़ब्ल अज़ वक्त है जो हम बोले कि हाँ ये करता है या नहीं करता है। तालिबान का जो पहले जो पॉलिटिक्स था, तकरीबन
25 साल पहले जो हुकूमत किया अफ़गानिस्तान में, उस वक्त ये लोग नहीं मानता था, औरत को बाहर नहीं निकलने देता था, उसके बकरा या चादरी जो हम कहता है, चादरी के बग़ैर या मर्द के बग़ैर उसको बाहर नहीं निकलने देता था, लड़कियां स्कूल नहीं जाता था. अभी वो लोग बोलता है कि हमको चेंजेस आया है, हम ये करता है कि मसलन औरतें जाए बेशक, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ये आपको पता है 40-42 साल में कितना बंदा मार गया है. मसलन यतीम बच्चियाँ है, बेवा औरतें, ये लोगों तो काम के लिए, खाने के लिए तो कुछ चाहिए, वो लोग तो काम मजबूरी काम कर ले. इसीलिए हम अभी उस पर नज़र रखें कि ये लोग क्या करता है आगे. जी मैम, अगर आपसे बात की जाए, जो आपकी बेटियां वहाँ पर अभी हैं, अगर जिस तरीके से भारत सरकार ये कह रही है कि एमरजेंसी ई वीज़ा जो है ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, जो भी लोग अफ़गानिस्तान से भारत आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आ सकते हैं, सिर्फ़ एक वीज़ा अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो क्या आप चाहेंगे कि वो जो आपकी बच्चियां वहाँ हैं वो भी भारत आ जाएं? हाँ, क्यों नहीं. मैं तो बहुत खुश है कि उन्होंने इधर आएंगे. पता नहीं उन्होंने आएंगे या नहीं, ये मुझे पता नहीं. तो आप कभी अब सोचते हैं कि जो हालात वहाँ पर चल रहे हैं, आपका अपना वतन है अफ़गानिस्तान, कभी सोचते हैं कि आगे अगर मौका मिले तो वहाँ जाया जाए, कि आप यही चाहेंगे कि जहाँ अमन अमान है भारत में, आप आराम से रह रहे हैं, यहीं रहा जाए? हाँ, मैं तो इधर खुश, मैं वापस तो नहीं जाती अफ़गानिस्तान, मैं तो इधर बहुत खुश. ਇਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ अफ़गानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. अगर हम आपसे बातचीत करें, जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें वहाँ की दिखाई जा रही हैं, वीडियोज़ आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप अपनी बहन से भी बातें कर रहे होंगे, क्या लगता है कि जो चीज़ें ये चल रही हैं उनका कितना नुकसान हो रहा है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि पहली बार मैं देख रही हूँ कि तालिबान आया है. पहले भी था लेकिन छुप था, तो हमने नहीं देखा था. लेकिन जैसे मेरी सिस्टर से हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि बहुत अभी हालात बिल्कुल ख़राब हैं. जैसे बाहर जाने भी बहुत डर लगता है हर किसी को. जैसे मेरी नीज़ नेफ्यू है ना, वो हमेशा अपनी मम्मा को बोलते कि मम्मा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी अफ़गानिस्तान का हालत बिल्कुल उल्टा हुआ है. तो बहुत ज़्यादा परेशानी, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमारे देश है. एंड आपको पता है कि देश बहुत ज़्यादा अलग सा कुछ फीलिंग्स होता है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं. और जब हालात देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे ख़ुद भी डर लगता है कि मैं ये अभी सोच रही हूँ कि मैं कभी भी अफ़गानिस्तान वापस नहीं जाऊँगी. हाँ, क्योंकि पहले मैं बहुत बोलती थी कि मम्मा हम जाएंगे वो अफ़गानिस्तान अपने बहनों के मिस, लेकिन अभी नहीं. जस्ट दुआ कर लूँगी कि मेरे बहनें भी सेफ रहे बस. तो आपने बहुत समा अपने अफ़गानिस्तान में निकाला है, आप वहाँ रहे हैं, तो क्या हालात देखते हैं? तब कैसे हालात थे वहाँ पर जब आप वहाँ पर थे? वैसे तो ऐसा कोई स्पेशल हालात नहीं था, नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी बम ब्लास्ट होते थे. और मतलब जो लड़कियों का स्कूल था उसमें भी पानी में मिलाते थे ताकि लड़कियों स्टडी ना कर पाए. तो ये सब हमारे टाइम पे भी होता था. अभी का तो आप खुद ही देख रहे हो, अभी का तो हमें नहीं पता. जब हम यहाँ पे हमारे ऊपर इतना मुश्किल वक्त बीत रहा है, आप ये सोचिए कि जो लोग वहाँ पे हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा. तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर मतलब जो कोई वहीं पे है तो वहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है. आपकी बहनों से आपकी बातचीत होती होगी, आप उन्हें कहते हैं कि वो भी कोशिश करें कि वो इंडिया आ जाएं? एग्जैक्टली, हम उनको हमेशा कहते हैं कि आप ट्राई करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, या आप इंडिया आ जाओ या आप कहीं और चले जाओ. क्योंकि हर किसी को अपने बहनों की, अपनी फैमिली की फ़िक्र रहती है. हमें भी ऐसी ही है. मतलब जब से ये हालात शुरू हुए हम भी बिल्कुल जैसे डिप्रेस नहीं होते, हम भी वैसे ही हो गए हैं. क्योंकि जो लोग देखते हैं, आपने देखा हुआ है, वो कैसे मतलब डर के भाग रहे हैं. लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कि उनको फ़ाइट करना चाहिए, उनके मतलब अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए.
जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें कह दिया गया है कि आप घरों के अंदर ही रहेंगे, घरों से बाहर नहीं आ सकते, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि तालिबान की तरफ से ये उनका जारी हुआ है, स्पोक्समैन ने बोला है उनके कि लड़कियों को, औरतों को, बच्चों को सारे राइट्स दिए जाएंगे, उन्हें पढ़ने भी दिया जाएगा, उन्हें काम भी करने दिया जाएगा। आपको लगता है ये चीज़ वहाँ पे पॉसिबल है? मे बी, लेकिन फिर भी लड़कियों को बहुत डर लगता है तालिबान से। आई डोंट थिंक सो कि कोई हिम्मत करके स्कूल जाए या कॉलेज जाए, क्योंकि वो जो डर है ना बहुत सालों से उनके अंदर है। तो पता नहीं कि वो अभी वो लेडीज़ क्या करेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि डर हमेशा होता है अपने साथ, क्योंकि उन्होंने किया है, जुल्म किया है उनके ऊपर। तो अभी मुझे पता नहीं कि शायद में भी वो चेंज हो जाए तालिबान लोग, जो अभी हमने न्यूज़ पे देखे, उन्होंने बोला इजाज़त है वो कॉलेज जाए, स्कूल जाए, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है। तो आपकी बहन से आपकी बातचीत हो रही है, आप उन्हें कह भी रहे हैं कि आप इंडिया आ जाएं, तो उनका क्या रहता है कि वो कहीं प्लान कर रहे हैं इंडिया आने का? अभी तो नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ पे बिल्कुल एरोप्लेन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे आ जाए? वो ट्राई भी करी तो अभी पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। तो वो अभी बोले कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, देख लेंगे बाद में क्या होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ओके अब बाहर भी जा सकते हो। तालिबान ने ख़ुद बोला है न्यूज़ पे, लड़कियों बाहर भी आ जा सकते हैं ना, लेकिन हिजाब करके। पता नहीं कि अभी लड़कियों बाहर आएगा भी या नहीं आएगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि डर तो होता है। वो हमारे साथ, जैसे अभी भी मेरे साथ है, मैंने नहीं देखा है लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। जैसे आप सोच लीजिए कि वो लाइव देख रहे हैं तालिबान को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए, क्या टफ। बातचीत होती है तो क्या बताती हैं आपकी बहन कि क्या चीज़ें वहाँ पे हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं उन्हें, क्योंकि वो वहाँ पे झेल रही हैं उन सब चीज़ों को, वो बाहर निकलने की कोशिश भी करते होंगे, उनको बाहर का, क्योंकि वहाँ पे अभी चीज़ों की ज़रूरत भी होती होगी, डेली नेसेसरीज़ जो हैं उसकी भी ज़रूरत होती होगी, तो क्या बताती हैं बहन? बहन अभी बोलती कि मैं एक रूम में हूँ, सारे जो उनके ननन वगैरह हम सारे, क्योंकि औरत एक साथ हैं, और जो वगैरह सामान का घर का सामान होता है वहाँ पे उनके पड़ोसी एक पता नहीं अंकल है, वो लेकर आते हैं इनके लिए। बाहर जो इनकी हिम्मत नहीं होते कि बाहर जाने का, तो इसलिए वो बोले कि हमारे लिए बहुत अभी टफ़ है, देख लेंगे उसके बाद क्या होगा। पता नहीं कि अफ़गानिस्तान का हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा या पता नहीं कुछ हो जाएगा, आई डोंट नो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा शॉक में हैं, क्योंकि अभी वो बड़ी हो गई हैं, तो वो सवाल करेगा मम्मा ये क्या हुआ है। तो उसका हम नहीं बोल सकते कि तालिबान है ये है ना, उसको नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा। तो वो बहुत रोती है, उसका जो फर्स्ट लड़की है वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम भी तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते कि पता नहीं क्या होगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਆਉਣ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।